Hello children, welcome to your EVS video class. In EVS we are doing chapter 9, that is days to celebrate. Children, explanation is over. I have already explained you the chapter. I discussed with you many festivals. Let me write the name of the chapter. Name of the chapter is Days to Celebrate. And in this chapter we discussed many festivals, and you know that some of the names of festivals are not given in the chapter, but I explained you those festivals also. I just made you familiar with the festivals that are celebrated in India, the major festivals that are celebrated in India, and that has nothing to do with your exams or test etc. That is only purely for your knowledge, that is purely for your information. आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, किस रीजन में कौन से फेस्टिवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है. तो इस हिसाब से हमने लोहड़ी, बैसाखी, संक्रांति, पोंगल, ओणम, छठ पूजा, ये सब हमने डिस्कस किया है ना. There may be some festivals which may not be celebrated in some part of India, but in certain part of India it is celebrated with lots of pomp and gay, with lots of excitement, and vice versa. कोई फेस्टिवल होगा नॉर्थ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन साउथ में शायद उसको नहीं जानते होंगे, या कोई फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो साउथ में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है बट नॉर्दर्न पार्ट जो इंडिया का है वहाँ उसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं हो लोगों को. लेकिन वो सारे इंडिया के फेस्टिवल्स हैं जिन्हें मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया. और इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड वी हैव कंप्लीटेड मेनी एक्सरसाइजेस. लाइक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी डिड, है ना. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हमने सबसे पहले किया था. सो द एक्सरसाइज दैट वी डिड आर choose the correct option, as I told you that we have completed. Then we also did give one word answer, then match the column, and today we are going to do answer the following. क्या करने वाले हैं? D, answer the following, which means the question answers of the chapter. And as I told you, I will give you few extra exercise also. कुछ extra exercise भी आपको मैं दूंगी इस chapter से related. Let's complete first this one. What is Diwali and who celebrates it? पहला, what is Diwali and who celebrate it? Who celebrate it? Okay. Question is, what is Diwali and who celebrate it? दिवाली किसे कहते हैं, दिवाली क्या है और इसे कौन सेलिब्रेट करता है. दिवाली क्या है, आपको मैंने बताया था ना कि दिवाली एक दियों का फेस्टिवल है. इट्स फेस्टिवल ऑफ हिंदू, लेकिन जैसा मैंने बोला कि इसे सेलिब्रेट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम जब सिर्फ रिलीजन की अगर बात कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू, है ना. तो दिवाली इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, isn't it? Diwali is a festival of lights. It is one of the most important festivals of Hindu. आंसर लिखेंगे, Diwali is a festival of lights. Diwali is a festival of lights. It is one of the
most important festivals of Hindus. ओके ये एस क्यों लगाते हैं? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स में से एक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स में से एक. सो दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज. Question number 2. Why do we celebrate Independence Day and Republic Day? Why do we celebrate Independence Day and Republic Day? हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों ही डे हम क्यों मनाते हैं? what are the reasons behind celebration of Independence Day and Republic Day? So our answer is we celebrate, we celebrate Independence Day because India got independence on this day. India got independence on this date from British rule. India got independence on this date from British rule. British rule से हमें independence मिला था and we became a free country and it became a free country. Because on this day, because India got independence on this date from British rule and it became a free country. British rule से हमें आज़ादी मिली थी और हम एक आज़ाद देश बन गए थे, इसीलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. ठीक है, ये रीज़न है. रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं वो मैं आपको अगर इसमें आ जाता है तो मैं ट्राई करती हूँ. वी सेलिब्रेट, आई होप दिस इज़ कमिंग इन द फ्रेम. यस, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे because on this date India got a constitution. India got a constitution. Constitution मतलब book of law. India got constitution. Okay. We celebrate Republic Day because on this date India got a constitution. So note down these two questions, then I will give you other. Okay. Now let me erase this. Okay.
Question number 3. Question 3 is, which are our national festivals? Which are our national festivals? हमारे नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? विच आर आवर नेशनल फेस्टिवल्स? सो यू विल राइट आर नेशनल फेस्टिवल्स आर, कौन कौन से हैं? ए, इंडिपेंडेंस डे, पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस डे, नंबर 2 इज रिपब्लिक डे, एंड सी इज गांधी जयंती. Okay, so these 3 are our national festivals. ये हमारे 3 national festivals हैं. Okay, now number 4, question number 4. I hope these 3 are clear. Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti, these 3 are our national festivals. And fourth question is, why is Eid ul Fitr celebrated? ठीक है, why is ईद उल फित्र celebrated? And answer is Eid ul Fitr is celebrated to mark the end of holy month of Ramzan. It's called Ramadan in English. Okay, it is, as I have told you, Eid ul Fitr is celebrated on the first day of Shawwal. Shawwal month के जो first day होता है उस दिन इसे celebrate किया जाता है. First month of, I'll write it, let me write it properly. End of holy month of रमदान. हम हिंदी में उसको रमज़ान बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड रमदान. ओके, सो ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ होली मंथ ऑफ रमदान. So these are all question answers. Now children, as I told you that every question, every chapter has some HOTS, that is high order thinking questions. In the beginning of the this session, for first 2 chapters I had given you the written answer of HOTS question, but later on I stopped because this is for you people. आपको खुद से इसे लिखना होता है. It is high order thinking इसको बोलते हैं. It is how you think about anything. I would assist you by verbally, by orally explaining you the answer. मैं आपको assist कर सकती हूँ, आपको help कर सकती हूँ oral explanation of, by giving oral explanation of the answer, the question and its answer, and you have to write it on your own. Of course अगर आप नहीं लिख पाएंगे, आपको कोई परेशानी होगी तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास में इसे बता दूंगी, लेकिन ये आपको खुद से ट्राई करना होता है. ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why different religions have different festivals?
वाई डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल्स क्यों होते हैं। समझ में आ रही बात? अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल, यही है ना क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन इज व्हाई डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट फेस्टिवल्स, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर क्या लिख सकते हैं इसका? चिल्ड्रन, फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं, पहले आपको ये सोचना है, तभी हम इसको रिलेट कर पाएँ। क्वेश्चन का मतलब है कि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग फेस्टिवल्स क्यों होते हैं। तो फेस्टिवल सेलिब्रेट ही इसलिए होते हैं कि उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्टिकुलर दिन कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, कोई ऐसी घटना घटी होती है उस पर्टिकुलर डे में जो उस रिलीजन से रिलेटेड होती है। You're getting my point? मतलब festivals are celebrated to remember the event that occurred or that happened on that particular day. Festivals are celebrated to remember the event that happened or occurred on that particular day. उस particular दिन पे जो भी घटना घटी है, जो भी event हुआ है, उसको याद रखने के लिए हम festival मनाते हैं, to keep it in our mind, to remember that event. उसको याद रखने के लिए हम उस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करते हैं। जिस दिन ये इवेंट हुआ हो, जिस दिन ये इवेंट घटना घटी हो, उस दिन को याद रखने के लिए ये मनाया जाता है। तो उस पर्टिकुलर रिलीजन में जो भी इवेंट हुआ होगा उस दिन, वो रिलीजन उस फेस्टिवल को फिर मनाता है। तो यू हैव टू राइट दैट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर certain events that happened on that particular day related to that religion, उस रिलीजन से रिलेटेड, ठीक है। एंड डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन पर्टिकुलर डे, उन सब का अपना एक पर्टिकुलर डे होता है टू रिमेंबर सच इवेंट्स, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन पर्टिकुलर डे, गेटिंग माय पॉइंट? डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन पर्टिकुलर डेज टू रिमेंबर दैट इवेंट। अब क्रिश्चियन, अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि क्रिश्चियन लोगों 25 दिसंबर को याद रखना चाहते हैं, क्यों? उस दिन क्या इवेंट हुआ था? उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। तो क्रिश्चियन लोग 25 दिसंबर को याद रखने के लिए, उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, इस बात को याद रखने के लिए वो लोग क्रिसमस मनाते हैं। हिंदू रिलीजन में दिवाली क्यों मनाते हैं? उस दिन राम जी, क्या उस दिन इवेंट हुआ था कि श्री रामचंद्र अपने किंगडम अयोध्या में वापस आए थे। इस इवेंट को याद रखने के लिए वो लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रिलीजन के अपने पर्टिकुलर डे हैं उस इवेंट को याद रखने के लिए, और इसलिए वे उसे सेलिब्रेट करते हैं। गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द पांडवास रिटर्न फ्रॉम वनवास? जो पांडव थे वो वनवास से कब लौटे? अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैम ने तो श्री रामचंद्र जी का बताया था कि उनको एग्जाइल मिला था 14 ईयर्स का, है ना। आपको ये याद है ना कि मैंने आपको बताया था कि ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिवाली कि जो श्री रामचंद्र जी थे उनको उनकी स्टेप मॉम ने, उनकी स्टेप मदर जो कैकेयी थी, उन्होंने उन्हें वनवास भेजा था, एग्जाइल में भेजा था फॉर 14 ईयर्स, और उनके साथ उनके ब्रदर और उनकी वाइफ भी गई थी। राम जी की जो पत्नी थी सीता माता और उनके भाई लक्ष्मण जी उनके साथ गए थे। लेकिन पांडव वो भी वनवास गए थे क्या? यस, दे ऑल्सो वेंट ऑन एग्जाइल। उन लोग को भी अज्ञातवास मिला था, ठीक है। इट वॉज एक्चुअली अज्ञातवास, वनवास विथ 1 ईयर ऑफ अज्ञातवास। उन लोगों को 13 ईयर्स का वनवास था, मतलब 12 ईयर्स तो उनको वनवास में रहना था और 1 ईयर उनको अज्ञातवास मिला था। अज्ञातवास मतलब कि वो जब वन में रहें तो कोई उन्हें ढूंढ ना पाए या कोई उन्हें पहचान ना पाए, मतलब उन्हें छुप कर जीना था। 1 साल तक उनको इस तरह से बिताना था कि कोई उन्हें पहचाने ना कि ये पांडव्स हैं। बात समझ में आ रही है? उनको 13 ईयर का वनवास था, जिसमें से 12 ईयर्स तो वो नॉर्मल रह सकते थे जैसे बाकी लोग रहते हैं, जंगल जंगल भटक कर, लेकिन 1 साल उनको अज्ञातवास था, मतलब कि 1 साल तक उनको इस तरह से रहना था कि कोई उनको पहचान ना पाए, कोई उनको ढूंढ ना पाए। और अगर उस 1 साल में किसी ने उन्हें पहचान लिया, किसी ने उन्हें ढूंढ लिया, तो फिर उनका वो पूरा का पूरा 13 ईयर्स फिर से बेकार हो जाएगा और उनको अपना राज्य
नहीं मिलेगा, हस्तिनापुर नहीं मिलेगा। तो आप कैसे इसको बताओगे कि पांडवास रिटर्न्ड फ्रॉम वनवास आफ्टर 13 ईयर्स, वो कितने दिनों के बाद लौटे थे? दे रिटर्न्ड फ्रॉम वनवास आफ्टर 13 ईयर्स, 12 ईयर्स ऑफ वनवास एंड 1 ईयर ऑफ अज्ञातवास, ठीक है, 12 ईयर्स ऑफ वनवास and 1 year of Agyatwas, total 13 years. So they returned from Vanvas after 13 years. Okay? तो ये दोनों आप खुद से लिखेंगे। देखिए पूरा मैंने आंसर तो बता ही दिया, नाउ यू हैव टू फ्रेम इट इन योर ओन वे। आप अपने ढंग से इसको, इन दोनों आंसर्स को आप लिखेंगे जो ये हॉट्स के क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में क्या है? In the school assembly, you find that your friend is disrespecting the national anthem. What will you do? अभी तो स्कूल बंद है, तो असेंबली वाला तो कोई सीन है नहीं, लेकिन मान लीजिए कि स्कूल खुले होते, ये सपोज करने वाली चीज़ है ना कि असेंबली हो रही है और असेंबली में तो प्रेयर होता है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब प्रेयर के बाद और भी असेंबली के इवेंट्स होते हैं और फाइनली लास्ट में नेशनल एंथम होता है। अगर असेंबली टाइम में अगर आपको दिखता है कि आपका कोई फ्रेंड है जो नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब वो नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो गा भी नहीं रहा है, हिल डुल रहा है। नेशनल एंथम गाते समय हमें हिलना नहीं होता है, ये तो आपको पता है ना कि जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हम हिलते नहीं हैं, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या करोगे? आप अपने फ्रेंड को क्या बताओगे जब वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा होगा? ये लाइफ स्किल का क्वेश्चन है, आप अपने से भी सोच सकते हो अगर लेकिन मैं आपको हेल्प इस तरह से कर सकती हूँ कि देखिए नेशनल एंथम जो है वो हमारा प्राइड है, हम सबका प्राइड है, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, एंड वी ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। अगर कोई नहीं रिस्पेक्ट करता है तो हमें उसे बताना है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम नेशनल एंथम गाते हैं, एंड व्हाट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल एंथम फॉर अ कंट्री। एक किसी भी सिटीज़न के लिए नेशनल एंथम कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उसका क्या वैल्यू है, वो उसको हम समझाएंगे और उसको कहेंगे कि वो नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना सीखे, ठीक है। डांटना नहीं है, किसी को डांटना, लड़ाई थोड़ी ना करना है, पर उसे उसकी वैल्यू, उसका इम्पोर्टेंस बताना है कि वाई डू वी सिंग नेशनल एंथम, ठीक है। इस तरह से हम उसको एक समझाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? व्हेन यू सी स्ट्रीट चिल्ड्रन हाउ डू यू फील, व्हाट इज़ दैट यू कैन शेयर विद देम। जब आप स्ट्रीट चिल्ड्रन को देखते हैं, जो रोड पर बच्चे घूमते फिरते रहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? What is that you can share with them? उनके साथ आप क्या शेयर कर सकते हो? जो रोड पे बेचारे, जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं, जिनके पास प्रॉपर घर नहीं होता है, शेल्टर नहीं होता है, प्रॉपर फूड नहीं होता है, प्रॉपर ड्रेस नहीं होता है, क्लोथिंग नहीं होता है, ऐसे बच्चों को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आती है? तो फीलिंग क्या आती है वो तो आप ही बता सकते हैं, वो तो मैं आपके बिहाफ में बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आप क्या शेयर कर सकते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ। यू कैन शेयर योर ओल्ड क्लोथ्स, योर ओल्ड वुलन्स, अपने जो पुराने स्वेटर वगैरह हैं वो आप उन्हें दे सकते हैं विंटर्स में यूज़ करने के लिए। आपके जो कपड़े छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, बट दे शुड नॉट बी टॉर्न, फटे नहीं होने चाहिए। कोई भी फटे कपड़े पहनना पसंद नहीं करता ना, तो फटे हुए कपड़े नहीं, लेकिन अगर छोटे हो गए हैं, थोड़े पुराने हो गए हैं और आप नहीं पहनते हैं, वो कपड़े आप उन्हें दे सकते हैं। उनके अलावा अपने टॉयज़ उनको दे सकते हैं, जो आप खेल के अब बोर हो गए हो और आपके पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तो आप अपने टॉयज़ दे सकते हो। यू कैन गिव देम बुक्स, आप उनको बुक्स दे सकते हो, पिक्चर बुक्स कोई होगी वो आप दे सकते हो। मे बी वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हों जहाँ पे फ़ीस नहीं लगती है, पर वो बुक्स हो सकता है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, स्टोरी बुक्स वो नहीं ख़रीद सकते हो, तो आप उनको स्टोरी बुक्स दे सकते हो। आप उनको स्टेशनरी, कुछ पेन पेंसिल कभी उनको गिफ्ट कर सकते हो। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं ये सब, मतलब आपको मुश्किल से 10-20 रुपीज़ या 50 रुपीज़ मैक्सिमम आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी अगर आप उन्हें पेंसिल, इरेज़र या लिखने के लिए कॉपी दे सकते हैं। इस तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइफ स्किल। ग्रुप एक्टिविटी तो हम बाद में, ग्रुप का है वो हम क्लास में करेंगे।
ऑनलाइन क्लास में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम एक्स्ट्रा पार्ट. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो मैंने आपको कहा था, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे. Children, I'll be giving you question answers only. ठीक है, बट बहुत छोटे छोटे आंसर्स होंगे. आंसर these questions. ठीक है. नंबर 1, ये सब क्या है? एडिशनल है, एडिशनल एक्सरसाइज, एडिशनल क्वेश्चंस. ये सब एडिशनल या एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं आप इसे. लेट मी इरेज इट एंड राइट इट अगेन. कहाँ मैंने लिस्ट रखी, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं. एक्स्ट्रा या एडिशनल, एक्स्ट्रा या एडिशनल क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. चलिए, नंबर 1 इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन. Who is called father of the nation? Who is called father of the nation? Answer is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is called father of the nation. Okay. Number 2, which festival is called Festival of Colors? किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं? वेरी इजी, होली है ना. होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहा जाता है. नंबर 3, नेम अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिल नाडु. नेम अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का आपको नाम बताना है. आंसर इज़ वेरी इजी, इट इज़ पोंगल, है ना. पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिल नाडु. पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु. इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ. बस एक एक सेंटेंस वाले क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको मैं. चलिए, इसको मैं इरेज कर दूँ. Question number 4. Question 4 is, which festival is celebration of the birth of Lord Krishna? Okay,
ये अभी आपने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है, कौन सा है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेशन ऑफ celebration of the birth of Lord Krishna. Which festival is celebration of the birth of Lord Krishna? कौन सा है? जन्माष्टमी, है ना? जन्माष्टमी is celebration of the birth of Krishna, birth of Lord Krishna, या सिर्फ कृष्णा लिखिए, लेकिन Lord Krishna is more appropriate, ठीक है? जन्माष्टमी is the celebration of the birth of Lord Krishna. Number 5. Which festival celebrates the bond of love and affection, the bond of love and affection between brothers and sisters, and ये भी आपने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है ना? विच फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आंसर इज रक्षा बंधन. रक्षा बंधन celebrates the bond of love and affection between आई होप दिख रहा है आपको, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ओके, ओके, आप इसे नोट कर लीजिए. अब मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ. Number 6. What is the other name for Guru Parab? What is, yeah, रुको, no, whose birth, whose birth anniversary is celebrated on Guru Parab? Whose birth anniversary is celebrated? Guru Nanak Dev Ji's, है ना? So Guru Nanak Dev Ji's birth anniversary, birth is celebrated on
Guru Param. Okay. And last question is, name the special sweet dish. Name the special sweet dish served on Eid. ईद उल फितर के दिन कौन सी स्पेशल स्वीट डिश सर्व की जाती है? आंसर इज सेवइयाँ, है ना? सेवइयाँ is the special sweet dish, is the special sweet dish served on Eid ul Fitr. Okay, so in this chapter I have given you only question answers. Extra में आपको सिर्फ मैंने question answers दिए and no other, क्योंकि हम already इसमें काफ़ी चीज़ कर चुके हैं और chapter से बाहर का कुछ भी नहीं दे रहे हैं. So this is all. Total 7 questions मैंने आपको दिए हैं extra. And with this we come to the end of this chapter. Explanation and exercise all is over, and in the next video we will start a new chapter. Okay, thank you.